11th chapter. 51. Which shloka? 51. As Krishna was speaking, then Sanjay was speaking to Dhritarashtra. And now Arjuna again is speaking to Krishna. Text number 51. Arjuna uvaca drstvedam manusam rupam tava saumyam janardana idanim asmi samvrttah sa-cetah prakrtim gatah. Translation and purport by Srila Prabhupada. When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "Seeing this human-like form so very beautiful, my mind is now pacified and I am restored to my original nature." So when Arjuna thus saw Krishna is in original form. What is the original form? Prabhuji, two-handed Sham. Yes. Two-handed Shyam Sundar Roop. This two-handed form is the original Shyam Sundar form. Roop. This is called a human-like form. भगवान की जो श्याम सुंदर फॉर्म है ये ह्यूमन लाइक फॉर्म है, ह्यूमन जैसी फॉर्म है. ह्यूमन लाइक मीन्स ह्यूमन जैसी फॉर्म है, बट एक्चुअली कृष्णा's फॉर्म इज लाइक आवर फॉर्म. we are our form is like Krishna's form. Krishna's form is original and our form is like that. So very beautiful form. My mind is now pacified. मेरा मन जो है पूरा गदगद हो गया है, सेटल हो गया, हल्का हो गया और मैं अपनी ओरिजिनल नेचर में पहुंच गया हूँ. असलियत पे आ गया हूँ, एक्चुअल नेचर पे पहुंच गया हूँ मैं. Prabhuji, what is the meaning of this? I am restored to my original nature. जैसे अर्जुन की क्या original nature? Original nature means I am now settled now, because when I was seeing the universal form, that time I was so disturbed, perturbed, and was so fearful. So by seeing this form, now I am settled. I am restored to my original nature. I have become normal now. उस समय अब नॉर्मल हो गया था मैं, आपका जब विराट रूप देख रहा था. अभी ये वाला श्याम सुंदर फॉर्म देख के मैं दोबारा नॉर्मल हो गया हूँ, अपनी ओरिजिनल नेचर में आ गया हूँ. This is the original nature. Here the words manusam rupam clearly indicate that the Supreme Personality of Godhead to be originally two-handed. Those who deride Krishna to be an ordinary person are shown here to be an ignorant of his divine nature. तो भगवान अपना मानुषम रूपम दिखा रहे हैं कि ये जो two-handed form है, this is the original form, मानुषम रूपम. और जो भगवान को नकारते हैं, भगवान को डिराइड करते हैं, भगवान को डिनाई करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं और भगवान को एक ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं, वो भगवान की प्रकृति से पूरे उसके अंधकार में हैं. वो भगवान की प्रकृति को बिल्कुल भी जानते नहीं है. They are fully ignorant about the position of Supreme Personality of Godhead. If Krishna is like ordinary human being, then how is it possible for him to show the universal form and again to show the four-handed form? तो ये विराट रूप वही दिखा सकता है जो भगवान है. भगवान के अलावा कोई अपना विश्व रूप विराट रूप नहीं दिखा सकता है. तो इनकारनेशन है, जो पाखंडी लोग हैं तो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ. तो उनसे हमें पूछना चाहिए, आप अपना विश्व रूप दिखा सकते हैं, अपना यूनिवर्सल फॉर्म आप दिखा सकते हैं? तो वो कोई भी नहीं ऐसे कर सकता, सिर्फ भगवान ही अपना फॉर्म दिखा सकते हैं. So that's why they are denying, they are deriding Krishna. So it is very clearly stated in the Bhagavad-gita that one who thinks that Krishna is an ordinary person and misguides the reader. गरम करके मत रखियो, वो ऐसे ही रख दियो. Please mute your audios.
So it is very clearly stated in the Bhagavad-gita that one who thinks that Krishna is an ordinary person and misguides the reader by claiming that it is an impersonal Brahman within Krishna speaking is doing the greatest injustice. तो ये जो भगवत गीता पढ़ता है ना, भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं कि ये भगवान नहीं बोल रहे, भगवान के अंदर कोई ब्राह्मण है वो बोल रहा है, नहीं इम्पर्सनल ब्राह्मण जो निराकार ब्राह्मण है वो बात कर रहा है। तो जो लोग ऐसी बात करते हैं, दे आर डूइंग द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस। जो निराकारवादी लोग हैं, दे आर डूइंग द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस, दिस इज द ग्रेटेस्ट डिससर्विस टू द ह्यूमैनिटी एक्चुअली। जो भगवान की पर्सनालिटी को, भगवान की पर्सनल फॉर्म को जो छुपा के रखते हैं और भगवान की पर्सनल फॉर्म का प्रचार नहीं कर रहे, भगवान के निराकार रूप का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति को बता रहे हैं जो सुप्रीम है, दिस इज अ ग्रेट डिससर्विस टू द सोसाइटी, दिस इज द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस दे आर रेंडरिंग। दिस इज a impersonal calamity actually for all the society, है ना। तो ये अभी जो निराकारवाद है ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया है कलयुग में, है ना। इस मॉडर्न सोसाइटी में this impersonal is being preached in a very prominent way, है ना। This is a greatest injustice to the humanity, greatest disservice they are doing. So this thing we have to preach this Krishna consciousness to the best of our capacity. Krishna is actually shown his universal form and his four-handed Vishnu form. So how he can be ordinary human being? A pure devotee is not confused by misguiding commentaries on Bhagavad-gita because he knows what is what. The original verses of Bhagavad-gita are as clear as the sun. They do not require lamplight from the foolish commentators. तो भगवान अपना चतुर्भुज फॉर्म दिखा रहे हैं, अपनी विष्णु फॉर्म दिखा रहे हैं, तो भगवान कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? तो जो शुद्ध भक्त है वो बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं है, मिसगाइडेड नहीं है, क्योंकि वो अननेसेसरी कमेंट्रीज नहीं पढ़ता है। जो भगवान के भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो सूर्य के समान है, उनको किसी टॉर्च लाइट, किसी लैंप लाइट की जरूरत नहीं है, किसी फुलिश कमेंट्रीज की जरूरत नहीं है ना। भगवान अपनी वाणी को खुद ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो भगवान अपनी वाणी को ये परंपरा सिस्टम के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, थ्रू संप्रदाय प्रेजेंट कर रहे हैं। We do not require the lamplight of the foolish commentators. They cannot give any opinion in this regard, because they are treating Krishna as an ordinary human being. They are deriding Krishna, they are denying Krishna, so they are not eligible to speak on Krishna. The Bhagavad Gita verses are there. They are like sun. They are self-effulgent. This knowledge of Bhagavad Gita is self-effulgent. तो ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में ही ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, एनलाइटनमेंट आ जाता है अपने आप। ये सुन के ही एनलाइटनमेंट हो जाएगा। मोर एंड मोर यू हियर अबाउट कृष्णा, यू विल बी एनलाइटन्ड फ्रॉम विद इन द कोर ऑफ द हार्ट। देन कृष्णा इज स्पीकिंग इन द नेक्स्ट वर्स 52। श्री भगवान उवाचा सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यन्ममा देव अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। So Krishna is speaking very big words, big purport. The blessed Lord said, my dear Arjuna, the form which you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear. तो ये जो अर्जुन, ये तो तुम ये जो रूप देख रहे हो, कौन सा रूप देख रहे हैं? Which form? Two-handed yes. मनुष्य का। थोड़ा अलर्ट रहना है आपको हियरिंग में, you should be attentive in the hearing. So many forms Krishna is showing in this chapter.
पहले विराट रूप दिखाया, उसके बाद विष्णु फॉर्म दिखाया, अब यहाँ पर ये श्याम सुंदर फॉर्म दिखा रहे हैं। तो श्याम सुंदर फॉर्म को भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ये जो तुम अभी श्याम सुंदर फॉर्म देख रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिहोल्ड। जो देवी देवता भी हैं वो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए भाग रहे हैं इस फॉर्म को देखने के लिए। इट इज वेरी डियर मोस्ट फॉर्म, it is very rare, it is very special form, this two-handed form of Krishna. Very difficult to behold this form. In the 48th verse of this chapter, Lord Krishna concluded revealing his universal form and informed Arjuna that this form is not possible to be seen by so many activities, sacrifices, etc. Now here the word sudurdarsham is used, indicating that Krishna's two-handed form is still more confidential. तो भगवान 48 वर्ष में बोल रहे हैं कि ये विराट रूप इतना ज्यादा भव्य है और ये भी बहुत रेयर है। ये भी जो रूप है ये किसी के द्वारा, किसी एक्टिविटीज, किसी सैक्रिफाइसेस के द्वारा पॉसिबल नहीं है इसको देखना। बट भगवान 52 वर्ष में उसको और दुर्लभ बता रहे हैं। सुदूरदर्शम, इवन दिस टू-हैंडेड फॉर्म is even more rare, more precious, more valuable. It is still more confidential than the universal form. One may be able to see the universal form of Krishna by adding a little tinge of devotional service to various activities like penance, Vedic study, and philosophical speculation, etc. It may be possible, but without a tinge of bhakti, one cannot see. That has already been explained. तो ये जो विराट रूप है, ये सारी और एक्टिविटीज के साथ थोड़ी सी भक्ति इंक्लूड करके इसको देखा जा सकता है। पेनेंस के साथ, वेदों के शास्त्र अध्ययन के साथ, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन के साथ अगर थोड़ी सी भक्ति ऐड कर दो तो यूनिवर्सल फॉर्म दे सकते हैं ना। बट अगर भक्ति नहीं है तो नहीं देख सकते। भक्ति का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। स्टिल बियॉन्ड दैट यूनिवर्सल फॉर्म, द फॉर्म ऑफ कृष्णा as a two-handed man is still more difficult to see, even for demigods like Brahma and Lord Shiva. They desire to see him, and we have evidences in the Srimad Bhagavatam that when he was supposed to be in the womb of his mother Devaki, all the demigods from heaven came to see the marvel of Krishna. They even waited to see him. A foolish person may deride him, but that is an ordinary person. Krishna is actually desired to be seen by demigods like Brahma and Shiva in his two-armed form. तो ये भगवान के विराट रूप से भी बहुत आगे और कॉन्फिडेंशियल फॉर्म है। ये टू-हैंडेड फॉर्म बहुत डिफिकल्ट है इस फॉर्म को देखना ना। इवन ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में थे तो उस समय सारे देवी देवता वो चमत्कार देखने के लिए आ गए थे और वेट कर रहे थे इस फॉर्म को देखने के लिए। तो जो मूर्ख आदमी है वो भगवान को डिराइड करता है, भगवान को एक ऑर्डिनरी पर्सन समझता है। बट कृष्णा जो है वो सिर्फ प्योर डेमीगॉड्स के तरफ, प्योर डेमीगॉड्स के लिए एलिजिबल है उनको देखना। लाइक ब्रह्मा एंड शिवा, they can only see this two-armed form. They are eligible with the pure devotional service they can see. With that pure devotional service they can see. Because our Brahma is a pure devotee of Krishna and Lord Shiva is a Param Vaishnava. They are eligible to see that two-armed form. Others are not eligible. In the Bhagavad-gita, it is also confirmed that he is not visible to the foolish person who deride him. Krishna's body, as confirmed by the Brahma Samhita and confirmed by himself in the Bhagavad-gita, is completely spiritual and full of bliss and eternality. His body is never like a material body. But for some who make a study of Krishna by reading the Bhagavad-gita or similar Vedic scriptures, Krishna is a problem. तो भगवान जो है मूर्ख लोगों के द्वारा विजिबल नहीं है, जो भगवान को नकारते हैं, भगवान को ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं ना। भगवान का जो दिव्य शरीर है वो ब्रह्म संहिता में समझाया गया कि भगवान का शरीर कैसा है, भगवान की बॉडी कैसी है। और भगवान खुद भगवद गीता में उसको बता रहे हैं कि ये पूरा
सत्य चित आनंद का बना हुआ है। सत्य चित आनंद। भगवान का शरीर कोई भौतिक शरीर नहीं है जैसे हमारा शरीर है, ओमिक्रॉन से भरा हुआ, कोरोना वायरस से भरा हुआ शरीर है हमारा। कृष्णा's बॉडी इज नॉट लाइक दैट। बट कोई भगवान का स्टडी कर रहा है, भगवद गीता को रीड कर रहा है ना, who make a study of Krishna by reading Bhagavad Gita or similarly Vedic scriptures ऐसे, Krishna is a problem। तो सिंपल ये प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, भक्ति के बिना कर रहा है, उसके लिए कृष्णा प्रॉब्लम है। फॉर वन यूजिंग ए मटेरियल प्रोसेस, कृष्णा इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी एंड वेरी लर्नड फिलोसोफर। तो कृष्णा को भगवान की तरह नहीं, कृष्णा को एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी समझ रहा है, उस तरह भगवद गीता पढ़ रहा है, ऐसे फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कर रहा है, नॉट फॉर डिवोशन, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कर रहा है। फॉर दैट कृष्णा इज अ प्रॉब्लम। बट ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, but something that even though he was so powerful, he had to accept a material body। तो ऐसा लोग सोचते हैं भगवान ने ये भौतिक शरीर धारण किया था, भगवान का सोचते हैं भगवान की मटेरियलिस्टिक बॉडी है। They are so foolish people like this। Ultimately they think that the absolute truth is impersonal, and therefore they think that from his impersonal feature he assumed a personal feature attached to the material nature। तो जो भी उनके मन में बातें आती हैं वो सोचते रहते हैं। Without the help of the guru, sadhu and shastra, they have their own thinking, they have the whimsical consciousness, whimsical opinion, whatever they want to think, they are just thinking। They are thinking Krishna is of materialistic nature। अंदर से भगवान कोई उत्पन्न हुए, इस निराकारवाद से भगवान ने आकार लिया और वो आकार जो है भौतिक प्रकृति से बिलोंग करता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। This is a materialistic calculation of the Supreme Lord। Another calculation is speculative। Those who are in search of knowledge also speculate on Krishna and consider him to be less important than the universal form of the Supreme। तो ये वो materialistic calculation थी। दूसरी calculation speculative है, मन घड़ंत। तो उसमें क्या है, वो भगवान को समझते हैं कि भगवान ये यूनिवर्सल फॉर्म से भी नीचे हैं, ये विराट रूप से भी नीचे हैं। Thus some think that the universal form of Krishna which was manifested to Arjuna is more important than his personal form। भगवान को सोचते हैं यूनिवर्सल फॉर्म भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान की पर्सनल फॉर्म से। According to them, the personal form of the Supreme is something imaginary। They believe that in the ultimate issue, the absolute truth is not a person। तो भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है वो इमेजिनरी फॉर्म है और भगवान कोई पुरुष नहीं है, ऐसा सोचते हैं वो लोग। But the transcendental process is described in the Bhagavad-gita, chapter 2, to hear about Krishna from authorities। That is the actual Vedic process, and those who are actually in the Vedic line hear about Krishna from authority, and by repeated hearing about him, Krishna becomes dear। तो जो प्रोसीजर है वो है सुनना, श्रुति से, अथॉरिटी से सुनना, ये एक्चुअल वैदिक प्रोसेस है। तो जो भी वैदिक लाइन को फॉलो करते हैं और कृष्ण के बारे में सुनते हैं अथॉरिटी से, कृष्ण उनके डियर मोस्ट बन जाते हैं। कृष्णा बिकम्स डियर टू देम। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्वेश्चन है, अभी इसमें पहले इन्होंने बताया ना, जो इम्पर्सनलिस्ट है वो उसको यूनिवर्सल फॉर्म को तो समझते हैं पर कृष्णा को नहीं समझते। तो उनको ये यूनिवर्सल फॉर्म तो कृष्णा ने दिखाया, तो फिर वो ऐसे कैसे समझ सकते कि यूनिवर्सल फॉर्म को मानते हैं और कृष्णा को नहीं मानते? वो यूनिवर्सल फॉर्म को भी नहीं मानते हैं, वो भगवान को एक ऑर्डिनरी पर्सन मानते हैं। भगवान एक ऑर्डिनरी पर्सन है और जो निराकारवाद है वो पर्सनलवाद से ऊपर है, पर इम्पर्सनल से पर्सनल निकलकर कोई मटेरियलिस्टिक से अटैच हो गए। उनका फिलॉसफी जो है बहुत कंफ्यूजिंग है ना। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग व्हाटएवर दे आर स्पीकिंग। They do so much of research on Krishna, because if he's an ordinary person, then they should not study about him so much. They are making a show. This is called a show bottle spiritualism.
है ना, दे आर थिंकिंग हम अभी मुक्त हो चुके हैं, हम ट्रांसेंडेंटलिस्ट बन गए हैं, बट उनके हृदय में सारी लस्टी और ग्रीडी डिजायर्स, because they are not following the guru sadhu shastra, they are not following any parampara system, they are just they are doing speculation, this is called speculation, ये नहीं तो वो है, वो नहीं तो ये है, speculation जो है ये materialistic platform में, this is not on the spiritual platform. So लेकिन प्रभु जी अभी आपने बताया था कि ये जो परफेक्शनिस्ट है वो ब्रह्मम वाला जो है उसको मानते हैं बट कृष्णा को नहीं मानते हैं। हाँ। तो ब्रह्मम मतलब को कोई क्या हुआ, मतलब वो किसको फिर मान रहे हैं? इसमें जानकी जी, इसमें 3 फीचर्स हैं भगवान के, सत्य, चित्त और आनंद। तो ये जो ब्रह्मवादी लोग हैं, इम्पर्सनलिस्ट है, निराकार है, ये भगवान के सिर्फ सत्य फीचर को मानते हैं, है ना, सत्य को मानते हैं, दिस इज देयर, बस वो इटर्नैलिटी को मानते हैं बस, है ना, दे आर नॉट agreeing to this chit and this anand feature. So that's why they are just they are very dry actually, there is no pleasure in this impersonalism, क्योंकि वो कोई फॉर्म है ही नहीं है ना, तो किस पे मेडिटेट करेंगे, किसका नाम लेंगे, वो किसका कीर्तन करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है वर्शिप के लिए, देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इन देम, इन निराकारवाद. So this procedure is not recommended for this age. We have to follow the procedure which is recommended. By doing that, we will progress in the devotional service. We should not do something which is not recommended, which is some artificial procedure. है ना, तो भगवान आजकल सभी लोग बस आत्मा का तो ज्ञान देते कि आत्मा और ओम का, तो जब हम करते हैं तो हमें शून्य, that is called निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी. चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्मैश कर दिया, प्रभुपाद जी ने इसको पूरा इसका पर्दाफाश कर दिया है पूरे फॉरेन कंट्रीज में जाके, है ना. चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश. अगर इन लोगों का सुनोगे, ब्रह्मवादी इसका, मायावादी इसका, तो हमारी भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इनजस्टिस कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट डिससर्विस कर रहे हैं. और प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र हम हर रोज पहले बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, सेकंड प्रणाम मंत्र है, नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी. क्योंकि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये वाले लोग बहुत मिले थे उनको, इम्पर्सनलिस्ट एंड वाइडिस्ट, शून्यवादी लोग और ये निराकारवादी लोग. तो इनको प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी से इनको पूरा स्मैश कर दिया था, उनको ऐसा डिफीट किया कि ये कभी सामने नहीं आए फिर प्रभुपाद जी के. So this thing we have to be very cautious, है ना. We should not be victimized by this impersonal procedure. Krishna is personal. Krishna is dvaita. Krishna is not advaita. He is dvaita, dual. Krishna is there, we are there. We cannot merge with Krishna. We cannot become one with Krishna. We can only serve Krishna. We can decorate Krishna. We can cook for Krishna. We can dance for Krishna. We can construct very beautiful temples of Krishna. We can organize festivals of Krishna. We cannot merge with Krishna. तो कृष्णा इंडिविजुअल है, हम भी इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकते, जो कि निराकारवादी उसको भ्रमित करके उसको लोगों को मिसगाइड करते हैं ये लोग. दिस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड. जब हम भगवान कृष्ण को अपनी आंखों में बसा लेते हैं, जब मन में बसा लेते हैं, जब हम आंखें बंद कर देते हैं, तो जब उनकी छवि दिखाई देती है तो हमें बहुत ही मधुरता का एहसास होता है मन के अंदर, और फीलिंग आती है कि हम उनको सजाएं और भक्ति करें और भगवान का नाम लें. उनके सामने बैठ के ही हमें अच्छा लगता है. अगर मैं कहीं और बैठती हूँ तो मन नहीं टिकता है. यहाँ मंदिर में बैठ के जब सामने भगवान की तो दृष्टि जब भगवान पे पड़ती है तो फिर मन लगता है इस चीज से. यही प्रोसीजर बताया भगवान ने भक्ति के लिए. भगवान 2 बार गीता में बोल रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु. भगवान कह रहे हैं तुम मेरा ही चिंतन करते रहो 24 घंटा. तो चिंतन कोई हवा का चिंतन थोड़ी करेंगे, किसी ज्योति का चिंतन थोड़ी करेंगे,
किसी निराकार का चिंतन थोड़ी करेंगे, भगवान के रूप का चिंतन सौम्य रूप करना में। है, भगवान के चरणों का चिंतन करना है, भगवान के त्रिभंगी लाल रूप का चिंतन करना है, राधा वृंदावन चंद्र का चिंतन करना है. So we can think of some form. We cannot become formless. We cannot become impersonal. Krishna is personal. Krishna is not impersonal. Krishna is Sat Chit Ananda Vigraha. The Vigraha means form. बड़े निराकारवादी क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद अविग्रहा. वो फिलॉसफी को ही चेंज कर देते हैं. So that's why it's very very cautious to hear from these people. मुझे आप कह रहे थे कृष्णा द्वैता है, अद्वैता नहीं है। द्वैता मीन्स वी फॉलो द्वैता. द्वैता मीन्स दो हैं, कृष्ण अलग है, हम अलग हैं. बड़े निराकारवादी क्या बोलते हैं? अद्वैत, दोनों एक ही हैं. जब आप भक्ति करोगे, आप मुक्ति हो जाएगी तो आप ही भगवान बन जाओगे. दैट इज वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग. प्रभु जी मैं क्वेश्चन पूछूं दो? यस. प्रभु जी मेरे को ये मेरा अपना लाइफ, हमारे भारतवर्ष में जो भी हिंदू लोग हैं और जो भगवान को कृष्ण रूप में मानते हैं, वो उनको बहुत अच्छी तरह से इसी भाव में पूछते हैं कि वो भगवान ही है और हम उनसे नीचे हैं सुपरमात्मा. और जब मेरे को लगता है, जैसे मैं शुरू से आपके उससे जुड़ी हुई हूँ, जब आप ये बोलते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देश तारिणे मतलब बाहर के जो पश्चिम देश है ना, उनको तारने के लिए जब प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको बाहर भेजा तो उनको इस मैसेज से भेजा कि पाश्चात्य लोग हैं जो सिर्फ भगवान को सत फॉर्म में देखते हैं. लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत डेप्थ का, जैसे मैं बांके बिहारी जाती हूँ, नाथ द्वारा जाती हूँ और कोई भी कृष्ण मंदिर में जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भक्त लोग हैं, जिसमें से हम लोग सब जो आपको सुनते हैं रोज रोज, हम ये मान के चलते हैं कि कृष्ण जो है, हमारे मन में ये कभी भावना नहीं आती कि हम भगवान के रूप हैं या हम उनके बराबर हैं. जिन लोगों के बारे में प्रभुपाद जी ने अपने परपट में रिपीटेडली कहा है, मतलब मैं ये सोचती हूँ ये उन लोगों के लिए कहा है कि जो ये एज्यूम करके चलते हैं कि वी आर द ग्रेटेस्ट. क्योंकि मैंने सिर्फ गीता यही नहीं पढ़ी एज इट इज, बट मैंने गीता भवन वालों की जो भी गीता स्वामी सुखदेव राम जी की है, सब में जो परपट होता है उसमें कहीं ऐसा नहीं दिया कि जो भक्त लोग हैं, और ऐसा इम्प्लाई होता है जो हिंदू धर्म के हिंदुस्तान में रहते हुए और विदेशों में रहते भक्त हैं, वो अपने आप को भगवान के इक्वल मानते हैं. तो जब हम आपके पास सुबह आते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम वो भक्तगण हैं कि जो भगवान के बराबर नहीं है, और हम कृष्ण को हमेशा ऊपर भगवान की तरह मानते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे अंदर एक सोल है जो कि सुपर सोल परमात्मा भी बोलते हैं. और इस तरह से मान के तो मुझे कई बार ना ये कॉन्फ्लिक्ट माइंड में होता है कि जो प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा हुआ है, क्या वो सच में, मैं अपने आप को मानती हूँ मेरे लिए दिया, तो मुझे हमेशा लगता है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कृष्ण को, कृष्ण बहुत बड़े हैं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे को हमेशा आता है, और मैं सुनती जरूर हूँ लेकिन मैं मान के चलती हूँ, मन में अपने आप से बात करती हूँ, दिस नॉट फॉर मी, दिस नॉट फॉर मी, बिकॉज फॉर मी कृष्णा इज ऑल सत चित एंड आनंद. It's not an argument, it's just an expression of my internal feeling. That's all. Yes, very nice, Bindu Mataji. But the thing is, when Prabhupada is writing about the condemnation of this impersonal feature, Prabhupada is condemning them. The reason is that we should become more strong in this devotional service, in the philosophical aspect of personalism. Plus, we have to preach to this Nirakarvadi, Shunyavadi. So for preaching to them, for spreading the message to them, we should be fully convinced. What are the flaws are there, what the loopholes are there. We should be fully convinced, and then we can preach to this Brahmavadis, this Nirakarvadis, because we have to convince them, and somebody can come to Krishna consciousness. That is a service to the Lord. Like Shukadev Goswami was impersonalist in the beginning. The Char Kumaras of Brahma, they were impersonalist in the beginning.
and they come to personalism. So many people can come. So whoever is willing can be preached. We have to bring them to Krishna consciousness. विष्णु प्रभु जी जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो तो उनकी तो पूरी फिलॉसफी अद्वैता ही है. तभी वो कहते हैं कि वो दे आर लिटिल बिट इन कॉन्फ्लिक्ट विद चलते हैं, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे बड़ी अच्छी से ट्रांसलेशन की है वेदास की. बट जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें यही लिखा होता है कि द फर्स्ट पॉइंट अबाउट शंकराचार्य फिलॉसफी इज दैट ब्रह्म इज अद्वैता, मतलब हम और उसमें अस्मि ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी ब्रह्मास्मि. हाँ, तो ये ठीक है, हम सुनते हैं, लेकिन हमारे मन में तो ये लगता है कि हम कृष्ण को भगवान ही मानते हैं जो सबसे ऊपर हैं, हम उनके बराबर नहीं है. और हम जब भी मंदिरों में जाते हैं उसी भाव, और मैंने देखा मेरे साथ बहुत कितने लोअर स्टेटस की इतनी भक्ति होती है प्रभु जी उनके अंदर, मैं इतनी आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में उनकी भक्ति देखती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद फील होता है कि एक्चुअली दे आर नॉट वेरी वेल रेड, बट देयर लेवल ऑफ भक्ति इज एक्सट्रीमली हाई. That's all. I don't want to prolong this discussion, but I just wanted to express certain things. Yes, Thank yes. you so much. Very nice. So whatever Acharya is giving, it is good for us, so that we should become very convinced in the philosophy and we can preach. So that why Prabhupada is again Prabhupada is mentioning this in the purports. So we can cover this tomorrow. We can hear the bhajan today. Well, let me first, we'll just cover this, or we'll discuss it tomorrow. Tomorrow we'll discuss it more. आज हम लास्ट के दो जो श्लोक हैं बहुत ज्यादा बड़े हैं. हाँ, तो इसको हम कल करते हैं. अभी आज 54 and 55, 53 तो बहुत इजी है, वो तो इतना नहीं है. हाँ, यस. तो ये पूरा फिलॉसफी अच्छी तरह समझ में आना है, ताकि आपको पूरा कन्विंस हो जाना है और इसको प्रीचिंग करना है. ये फिलॉसफी सिर्फ अपने लिए नहीं है, सबके लिए है, सबको बांटना है, इसको सबको भक्त बनाना है, सबको ये प्रीचिंग करनी है हमें. तो वेरी नाइस. एंड और आज हम ये लोचन दास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, तो उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को गुणगान किया है, उनको ग्लोरीफाई किया है. इट्स वेरी नाइस भजन. निताय गुण मानी आमार. जो नित्यानंद प्रभु हैं वो लव ऑफ गॉड बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं. तो ऐसे बांट रहे हैं, बहुत लिबरल होके ऐसे ही सबको दे रहे हैं. तो जो लोग फॉर्चुनेट हैं वो आके ये चैतन्य महाप्रभु जो लव है, जो प्रेम है, उसको ले रहे हैं, और जो अनफॉर्चुनेट है वो नहीं आ पा रहे. तो दिस इज द वेरी नाइस भजन. आई विल जस्ट प्ले एंड यू कैन हियर वेरी नाइस meaning of this bhajan. कमर को क्या हो गया तो यार. নিতাই গুণমণি
Devana
श्री निताय गौरंग की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। These bhajans are written by the acharyas. आपने पहले भी सुनवाया था ना प्रभु जी ये भजन 3-4? नहीं, वो डिफरेंट था, that was निताई पद कमला. This is different, this is निताई गुण मानी अमा. अच्छा अच्छा। Acharyas, they have given the devotional opinion, non different from Hare Krishna mantra. इतना डीप मीनिंग है इन भजन में, तो इसको हम बार बार सुनेंगे तो कॉन्शियसनेस हमारी एनलाइटन हो जाएगी. That's why I play these songs.